ये रहा मंदिर, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। This Tirupati temple was built to replicate the Tirupati Venkateshwar temple in Andhra Pradesh. It was inaugurated in 2019. So this is the newly built temple in Kanyakumari. वीडियो फोटो नहीं बना सकते हैं, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अभी मैं अंदर जा रही हूँ और अपने कैमरे को करती हूँ मैं बंद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। This temple's construction started in July 2013 and inaugurated in 2019. This temple is an example of great architecture. Let me tell you how. This temple was designed so that sunlight falls directly on the foot of Venkateshwar Swami idol on the occasion of Vishu every year. Those who don't know what Vishu is, let me tell you. Vishu is a cultural festival celebrating on the two harvest season in Kerala. So this unique thing make this temple so special. So take a time and do visit this temple as soon as possible, because this is a very beautiful place and the vibe is so calm over here. So let's move on to our next destination. अब हम आ गए हैं साईं बाबा मंदिर में। ये भी यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। साईं बाबा के डिवोटीज यहाँ रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और हमारे पास टाइम की कमी है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे। मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। This temple is not built in any huge piece of land, but still it's built very beautifully. धूप बहुत है, प्रेफर करो आप कि आप शाम को आओ। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो कैमरे को मैं यहीं पे बंद करूंगी। ये मंदिर की टाइमिंग्स दी हुई हैं, आपको जब भी आना हो इस टाइम टेबल को कंसीडर करें। और अब हम दर्शन करके जा रहे हैं। हमें टाइम कम दिया गया था, 10 मिनट का टाइम था। गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ की खास बात ये है कि इतनी तेज धूप उतनी नहीं लग रही कंपैरेटिवली जितनी कि मुंबई में लगती है, ना ही पोल्यूशन फील हो रहा है। Now we are going to Suchindram temple, which is at a distance of 5.5 kilometers from Sai Baba temple. Suchindram temple is also called as Thanumalayam temple or Thanumalayam temple, which means this temple is dedicated to Brahma, Vishnu and Mahesh. This temple is known for its quality of workmanship in stone. You can see the carving of this temple. This is so beautifully built. You can see every area is so precise, even though they didn't have any machinery like nowadays. I didn't understand the stone. Let me know in the comment if you know about this. हम आ गए हैं सुचिंद्रम मंदिर में, और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल निकालने हैं, और यहाँ वो बॉक्स देंगे, उसका नंबर याद रखना है। अब हम यहाँ अंदर जा रहे हैं। You can see the carving or sculpture on every pillar. Now these are the famous musical pillars that were carved out of a single stone. Isn't this amazing? Is it? This is how all the temples of India is amazing.
इसी मंदिर में एक विशाल नंदी की प्रतिमा है जिसे कॉन्च शेल्स या शंखों को क्रश करके बनाया गया है। We found this sculpture a player of music in one of the pillars. The level of skill apart from the artistic work is remarkable. You just imagine the level of precision required to sculpt such a masterpiece. This temple has a huge pratima of Hanumanji. This pratima is carved out of a single granite block. और ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पे एक तालाब भी है जो हमें आते टाइम दिखा था। इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। देखने में तो काफ़ी गंदा लग रहा है कि रुका हुआ पानी है तो ऑब्वियसली गंदा तो रहेगा ही। हम खड़े हैं मंदिर के बैक साइड में। ये बैक साइड का डोर है। मंदिर में आपको म्यूजिकल पिलर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे म्यूजिकल पिलर्स हैं। उन पे कान लगा के सुनने पे और एक साइड से उस पे ठक ठक करने से म्यूजिकल आवाज़ें आती हैं। आई गेस 4 या 5 पिलर्स हैं जो म्यूजिकल हैं और ऐसे ही टोटल 1000 पिलर्स हैं। जैसा कि मुझे अंदर पता चला है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है और उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हर पिलर्स में दिए दिए गए थे जो रात में सब जगह के दिए को जलाया जाता था। जैसे कि ये आप देख रहे हो, हर पिलर में, ये काफ़ी पुराना हो गया है, हर पिलर में ऐसा दिया लगा होता था और यहाँ पे तेल भर के वो जलाते थे। साथ ही मुझे पता चला कि इस मंदिर को 3 राजाओं ने बनाया है, जिसमें से एक चोल राजा भी थे। बाकी 2 का नाम मुझे याद नहीं है। तो ये था सुचिंद्रम मंदिर। अंदर बार आओ, यहाँ अंदर आके एक्सपीरियंस करो। बहुत अच्छी जगह। मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना है। अंदर छोटे छोटे कई जगह हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये स्पेशली ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन में। सुचिंद्रम के बाद हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जिसके लिए हमें फेरी लेनी होगी और ये टिकट के प्राइस हैं। टिकट्स लेने के बाद हमें फेरी का वेट करना होता है। यहाँ पे 4-5 फेरीज़ हैं और ये शिफ्ट में जाती हैं। हमारी बोट जो आ रही है यहाँ पे खाली होगी, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे। ये हमारी क्यू है। जितने लोग बैठे हैं इसमें सबको लाइफ जैकेट पहनाया गया है। यहाँ पे टिकट काउंटर है। 30 रुपीज़ पर पर्सन आपको टिकट लेना होगा। यहाँ पे रामायण मंदिर या फिर भारत माता मंदिर जिसको हमने लास्ट वीडियो में विज़िट किया था, उसका ही मॉडल रखा हुआ है। यहाँ पे हमें ऊपर चल के जाना है और ये वाली जो क्यू है ये फेरी के लिए है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि माइक में हवा ना आए। अपने फुटवेयर जमा कराने के बाद
अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ साधना स्थली पे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भगवती अम्मन के पद चिन्ह है जिनको मंदिर बना के रखा गया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे स्वामी विवेकानंद साधना स्थली है। और यहाँ सेंटर में एक कंपास दिया हुआ है जो मुझे नहीं पता क्यों दिया गया है, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस इज द लास्ट स्पॉट ऑफ इंडिया। वो आप देख रहे हो तिरुवल्लुवर स्टैचू है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। जब वो वापस से चालू हो जाएगा, आई गेस नेक्स्ट ईयर वो फिर से चालू हो जाएगा, तब वहाँ भी जा सकेंगे। बात करें तिरुवल्लुवर की तो ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ सेंट एंड ही वॉज अ तमिल पोएट। ही वॉज नोन एज द ऑथर ऑफ तिरुक्कराल। What Tirukkural is? Tirukkural is a book which is considered as a masterpiece of human thoughts and compared in India and even abroad to the Bible. बात करें स्वामी विवेकानंद रॉक की तो he visited Kanyakumari on 24th December 1892 before he started his journey to Chicago. And then Swami Vivekanand swam across the sea and reached to this rock, which is in the middle of sea, you can see here, and he meditated on this rock for 3 days and night until he attained enlightenment here. और कहा यह भी जाता है कि देवी कन्याकुमारी ने उन्हें यहाँ दर्शन भी दिए थे। एक मान्यता के अनुसार देवी कन्याकुमारी ने भी जो शिव को पाने के लिए तपस्या की थी वो भी इसी रॉक पे की थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी लहरें तेज़ हो रही थी। हम लास्ट बचे हुए थे कन्याकुमारी ये रॉक में, और इसलिए हम अब वापस जा रहे थे और इसके क्लोजिंग का टाइम भी हो गया था। जब मेरा कैमरा ऑफ था तो वेव्स इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ तक पानी आ गया था। तो उसके जस्ट बाद ही मैंने कैमरा ऑन कर दिया था सो दैट मैं एक तो शॉट रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन जब तक मैंने ऑन रखा था मुझे कोई शॉट नहीं मिला था बड़ी वेव्स का। फेरी में बैठने के बाद माहौल बहुत हॉरिबल हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि फेरी लिटरली जंप कर रही थी। आई गेस आज हाई टाइड आई हुई थी, इसी वजह से ये जर्नी इतनी हॉरिबल हो गई। फाइनली हम पहुंच गए और अब हम बीच साइड पे आके सनसेट का वेट करने लगे, और फाइनली हमें सनसेट रिकॉर्ड करने का मौका मिला। सनसेट के बाद जो स्पेशलिटी है यहाँ के वेदर की, ये पूरा पिंक हो जाता है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद हमने डिनर किया और होटल से जाके अपना सामान लिया और सीधा आ गए स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रामेश्वरम की। रामेश्वरम की जर्नी स्टार्ट करने के साथ ही वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे रामेश्वरम में, तब तक के लिए बाय बाय।